ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوجے جوہر گفتار سے۔ اثر کرے نہ کرے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بعد اس کے ہمارے گلشن کے تمام چہکتے اور مہکتے ہوئے پھولوں کو، یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا دعا اور پیار ہو۔ تو اب ہم آئیے پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات سماعت کیے ایک مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ۔ علماء 72 فرقے، جبکہ علماء 72 فرقے عیسائیوں کے سوال جواب میں ہار گئے تو اسپین کے مسلمانوں کو عیسائی بن جانا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء 72 فرقے محمدی اسلام سے ناآشنا تھے، زمانہ جاہلیت والے دھرم کو اسلام سمجھ رہے تھے اور جاہلیت کے افعال کر رہے تھے۔ اپنی عیاشی و بدفعلی کے علاوہ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنا اور متعلقہ بیویوں کی حرام کاری کو سمجھنا، متعلقہ بیوی کی حرام کاری کو سمجھنا، اور جو بھی کر ڈالیں بس نماز پڑھ لینا کافی ہے کہ ہر گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ نماز بھی انوکھی نماز تھی، یعنی نمازوں میں حضرت عیسیٰ و موسیٰ کی کہانیاں پڑھتے تھے اور اپنے پیغمبر کا خیال آ جانا نماز فاسد ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ بس ایسے مسلمانوں کا عیسائی بن جانا لازمی تھا۔ وہ تو اسپین تھا، ابھی وہ لوگ تو مسلم تھے۔ میں کہتا ہوں آج اگر عیسائیوں سے بحث ہو جاوے تو وہ سب مسلمان عیسائی بن جائیں گے جو حضرت عیسیٰ کو روح اور حضرت محمد کو بصر کہتے ہیں، اور جو حضرت عیسیٰ کو زندہ اور حضرت محمد کو مردہ کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ و مریم کی داستان نمازوں میں پڑھتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آ جانے سے نماز فاسد سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ عیسائیت میں سرابور ہیں، ایسے لوگوں پر کوئی شک و شبہ نہیں، یہ تو ایک بحث میں سب کے سب عیسائی ہو جائیں گے۔ دوم، جو لوگ اپنے باپ دادا کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں اور احترام قبور کو حرام اور بت پرستی کہتے ہیں، اب غور طلب یہ ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کا روضہ گنبد بنانے والے خلفائے کرام ہی تھے جنہوں نے مدینہ کو حرم سمجھا، مزار اقدس پر گلاف چڑھایا، اور دنیا بھر کے زائرین مدینہ کے ارکان ادا کر رہے تھے، جبکہ آج وہ ارکان حرام قرار دیے گئے تو قبر و گنبد تعمیر کرنے والے خلفائے صحابہ مع زائرین بھی مشرک و بدعتی ٹھہرتے ہیں۔ پس جو اپنے باپ دادا کو مشرک و بدعتی کہتے ہیں وہ دین محمدی کے افراد نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا تعلق ابو سفیان جیسے اموی عیاسوں کے ولد زنا زیاد بن شمیہ، عمر بن عاص وغیرہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ
वल्द जना ज़ियाद बिन शमिया, उमर बिन आस वगैरह से हों, लिहाजा वो लोग अपने बाप दादा को मुशरिक और बिदती कह सकते हैं। और मज़ार व गुंबद को सिर्फ बिदत, ऐसे लोग भी ईसाई बन सकते हैं। बस नाज़रीन कराम को चाहिए कि दीन मोहम्मद समझने के लिए सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को किसी मुर्शिद कामिल सूफिया कराम से फैज़ हासिल करें। उसी कलमा के समझने पर सब कुछ मुनहसिर है। उसके बाद कुरान के हुरूफ मक्तियात और आयात मुतसाबिहात और सूरह मुहकामात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। उसके बाद इन्ना आतैना कल कौसर के मुताबिक अपनी जिंदगी में कौसर हासिल करें। उसके बाद अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात की तामील करें, तो फिर ना गैर मजहब वालों के सामने लाजवाब और शर्मिंदा होना पड़ेगा और ना उलमा 72 फिरकों के फितना व शरीयत का खौफ बाकी रह जाएगा। क्योंकि कौल कुरान है, इन्ना सानिया का हुआ लबतर, कि अगर ऐसी नमाज पढ़ ले तो तेरा दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएगा। ये है कलमा और तबलीग की हकीकत जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए लाजमी है। नोट, जो लोग दिन मोहम्मदी जानते हैं उन्हें दुनिया में कोई खतरा नहीं, क्योंकि इस्लाम रहमत है और रहमत का कोई दुश्मन नहीं। जैसे यूरोप से सिर्फ वो लोग ईसाई बना लिए गए जो अमवी शरीयत को इस्लाम समझ रहे थे, इसी तरह उनके किरदार नुमाया थे जिससे इंसानियत परेशान थी। वरना जो दिन मोहम्मदी की शरीयत जानते और मानते थे वो आज भी यूरोप व अफ्रीका में बखैर व आफियत सही सलामत है। स्पेन और पुर्तगाल में भी मोहम्मदी जहनियत के मुसलमान आज भी मौजूद हैं। अलावा अजीम यकोस्लाविया, रोमानिया, अल्बानिया, बल्गारिया, ऑस्ट्रेलिया, मोराकिश, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, लीबिया, जस्सा, अबिसीनिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया, सतीगाल, नाइजीरिया, डरबन, अंगोला, साउथ अफ्रीका वगैरह और मजमुआ जजायर, जंजबार, मुर्गा सागर, मॉरिशस, गायना, फिजी, जावा, न्यूकनी, फिलिपाइन, सुमात्रा वगैरह में भी मोहम्मदी जहनियत के मुसलमान अब तक मौजूद हैं। उनके खुराक, पोशाक, तहजीब, तमद्दुन उसी मुल्क की आबो हवा के मुताबिक है, मगर वो मुसलमान हैं। उन्हें कोई खतरा मजहब छिन जाने का नहीं है। उलमा 72 फिरकों की शरीयत समात फरमाए। अबू सुफियानी जहनियत से जो शरीयत बनाई गई वो बजोर ताकत तलवार चलाई जाती है, वो खूनी शरीयत है और मोहम्मदी शरीयत बसाने रहमत है। ये दोनों शरीयत हमेशा से दो हैं और हमेशा दो रहेंगी। मगर कोई खुदगर्ज लीडर या रहनुमा अपनी मकसद बरारी के लिए एक मशहूर मकूला इस्तेमाल करता है कि हम कुल मुसलमान एक हैं, सबकी एक शरीयत है, सबका एक खुदा है। यही बोली बोल कर बादशाही हुकूमतों में कितने सूफिया कराम को शरीयत के खिलाफ कहकर कत्ल खून कर डाला और शरीयत का रौब गालिब कर दिया और शरीयत के खौफ की इस कदर शोहरत की गई कि हर मुसलमान शरीयत का नाम सुनकर कांप जाता रहा। जैसे अंधेरी रात में किसी टेढ़ी लकड़ी या पड़ी हुई रस्सी को अचानक देखकर सांप समझ लिया जाता है, उसी तरह फिरका परवर उलमा की खूनी शरीयत को अंधेर नगरी में शरीयत ही समझा जाता रहा। जैसे बाज औकात सुना जाता है कि अगर कहा जाए कि आलिम मौलवी लोग ही फिरका बंदी और झगड़ा लगाते हैं तो कोई फौरन ये कह देता है चुप रहो वरना फतवा निकल जाएगा तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे। और बाज औकात आलिम मौलवी खुद भी ये कह देते हैं कि न हुई सरई हुकूमत वरना खाल खिंचवा ली जाती। गोया शरीयत के चाबुक मार मार कर मुसलमानों को खौफजदा किया जाता रहा है। जैसे सर्कस वाले इलेक्ट्रिक चाबुक से मार कर शेरों को खौफजदा करते हैं। बहरहाल शरीयत का नाम ही सुनकर मुसलमान खामोशी अख्तियार कर लेता है, यानी शरीयत के सामने ना आंख मिलाई जा सकती है और ना जुबान खोली जा सकती है। जैसे भेड़िए को देखकर बकरी गुंग हो जाती है, बंदर अपनी आंखें मूंद लेता है और गधा बेचारा फौरन चित लेट जाता है, तब भेड़िए की मर्जी पर मुनहसिर है, जो चाहे सो करे। ठीक उसी तरह उलमा की खूनी शरीयत भेड़िए के सामने मुसलमान बेचारे गुंग होकर आंखें मूंद लेते हैं और चित लेट जाते हैं। अब अमवी खुनखार उलमा की खुशी पर मुनहसिर है, जो चाहे सो करें। जिनकी किए हुए चंद मिसालें मंदरजा झेल है, मुलाहिजा करें। मुसलमानों का जिंदा जनाजा। पहला कदम, जबकि शहजादा दारा सिकवा को शाहजहां बादशाह हिंद ने वक्ती आबो हवा के मुताबिक अमन व शांति के लिए अरबी व दीनी तालीम, फारसी इल्म, तसव्वुफ और हिंदी विद्यांत में माहिर कामिल बनाकर अपना जानशीन मुकर्रर किया, जिससे हिंदुस्तानी अवाम बेहद मुतासिर हुए।
हिंदू मुस्लिम दोनों खुश थे और सबकी जुबान पर था कि वाकई हिंदुस्तान का ऐसा ही बादशाह होना चाहिए। दारा शिकवा को न तो किसी फिरके से बुग़्ज़-ओ-इना था और न किसी कौम से हकारत व नफरत थी, मगर दारा शिकवा की मकबूलियत देख कर उलमा 72 फिरके का पेट फूल रहा था और खून सूख रहा था। लिहाजा उलमा ने शहजादा दारा शिकवा के छोटे भाई औरंगजेब को अपने दाम में ले लिया और उसको समझाया कि दारा शिकवा हिंदी और संस्कृत पढ़कर हिंदू और काफिर हो गया है। देखो, अपनी अंगूठी पर प्रभु लिखवाया है और तख्ते हुकूमत पर शंकर की तस्वीर बनवाया है। ऐसा मालूम होता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी हिंदू बना देगा। लिहाजा किसी तरह दारा शिकवा को कत्ल करके तख्त हासिल कर लेना चाहिए ताकि हिंदुस्तान में रब्बानी हुकूमत बनाई जा सके। बस उस सुझाव पर उलमाए दीन मां औरंगजेब ने दारा शिकवा के खिलाफ फतवा निकाल दिया और मस्जिदों में प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि शहजादा दारा शिकवा के खिलाफ कि वो काफिर है, जिससे अक्सर मुसलमान गम और गुस्सा में आकर औरंगजेब के तरफदार हो गए और जिहाद शुरू कर दिए। कई लड़ाइयां हुई। मौका पाकर औरंगजेब ने दारा शिकवा को कत्ल करने में कामयाबी हासिल कर ली और खुद अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया और दारा शिकवा की लाश लाल किला के गेट पर और सर मुबारक जामा मस्जिद के गेट पर लटका दिया। 3 दिनों की नुमाइश के बाद सर और लाश को बगैर कफन व बगैर नमाज जनाजा पढ़े हुमायूं के मकबरे में दफन करा दिया। तब आलमगीर के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। फिर क्या पूछना था। उलमाए दीन के मशवरों से कत्ल खून का बाजार गर्म हुआ। खुसूसन सूफी अकीदतमंदों को मजबूर करना शुरू किया, जैसे शहजादा दारा शिकवा को मार दिया, फिर सूफी सरमत शाह को यहूदी कहकर कत्ल करा दिया, फिर सूफी आकिल खान को डेग में बंद करके चूल्हे पर चढ़ाकर गर्म पानी में खौला दिया, फिर सूफी मशरिफ के फकीर गुरु तेग बहादुर जी को कत्ल करा दिया। वाकया यूं है कि औरंगजेब ने सूफी तेग बहादुर जी को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम हमारी हुकूमत में रहकर झगड़ा फसाद करते हो। उन्होंने कहा कि हम फकीर हैं, फकीरों का काम झगड़ा करना नहीं। औरंगजेब ने कहा तुम फकीर हो और जल्लाद को हुक्म दिया कि इनके गर्दन पर तलवार मारो। अगर फकीर हैं तो तलवार का असर ना होगा। खैर, जल्लाद ने तलवार मारकर कत्ल कर दिया तो गुरु गोविंद जी ने इस खूने नाहक पर एहतजाज किया तो गुरु गोविंद जी के 2 मासूम बेटों को दीवार में चुनवा दिया। औरंगजेब की शरीयत पर सूफी हमदर्द शिवाजी को भी एतराज था तो औरंगजेब ने उनके बेटे संभाजी को गिरफ्तार करा लिया और जुबान दराजी के जुर्म में संभाजी को भी कत्ल करा दिया। फिर सूफिया कराम के अक्सर मज़ारों और खानकाहों को मुसमार कर दिया और अजमेर शरीफ दरगाह भी तोड़ने का मंसूबा बनाया। गोया औरंगजेब की सर पर मजहबी दीवानगी का भूत सवार था, जिससे सूफी मशरफ के हिंदू मुसलमान सिख मरहट्टा सबों को कत्ल खून का निशाना बनाया, जिससे हिंदुस्तान में एक जबरदस्त खलफसार और बदअमनी मच गई। इस बदअमनी कत्ल खून को देखकर स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और अंग्रेजी ईसाई पादरी हिंदुस्तान में आ गए, मगर उन पादरियों ने अब मुनाजरा नहीं किया। अपने प्रचार का दूसरा मुहाज बनाया, यानी आलमगीर कत्ल खून और बदअमनी के मुकाबिल वो पैगाम अमन, वो शांति, जुल्म सितम के मुकाबिल खिदमत की तहरीक चलाई, जिससे मजलूम हिंदुस्तानी अवाम खुश हुए। नतीजा ये हुआ कि यूरोपियन पादरी हिंदुस्तान में भी कामयाब हुए। औरंगजेबी उलमा की हुकूमत रब्बानी तो किया, बनी बनाई शाहजहानी हुकूमत भी खत्म हो गई। मुगल के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया और हिंदुस्तान पर अंग्रेजी हुकूमत हो गई। उलमा 72 फिरकों की शरीयत का नतीजा ये रहा कि स्पेन के बाद हिंदुस्तान से भी इस्लाम का हुकूमत का सफाया हुआ। दूसरा कदम, जबकि हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत हो गई, तो अंग्रेजों ने हर हिंदुस्तानी कौमों को मौका दिया कि वो अंग्रेजी पढ़कर अपने अपने मुस्तकबिल को सुधारें, मगर मुसलमानों को हर किस्म की आज़ादी दी और शरीयत को भी खूब छूट मिली, चाहे जितना कोई नमाज पढ़े और मस्जिद बनावे। बल्कि सरकारी दफ्तरों में नमाज के वक्त छुट्टी मिलती, कोर्ट कचहरी में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बना दी जाती ताकि मुसलमान अपने मजहब की पूरी तामील करें। अंग्रेज अफसरान मुसलमानों को ही बाऊ, बावर्ची, जारूब कशी, फंसी, पंखा कश, दफ्तरी और नौकर चाकर रखते थे। अंग्रेज अपने नौकरों के नमाज रोजा में आसानी देते थे। यह मुसलमान अंग्रेजों से बहुत खुश थे। जबकि सर सैयद अहमद खान ने देखा कि मुसलमानों को इनकलाब जमाना का चक्कर खाना पड़ेगा, क्योंकि ये मजहब और गुलामी के आदी हैं, फिर ये कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे।
इसी नमाज, रोजा और बोई बावर्ची में हमेशा रह जाएंगे और हिंदुस्तान की दूसरी कौमें तरक्की याफ्ता होगी, क्योंकि वो जमाना को पहचानती है और जमाना के मुताबिक तालीम हासिल कर रही है। लिहाजा मुसलमानों को भी जमाना के मुताबिक अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है। आपने अंग्रेजी मदरसा के मुनासिब जगह के लिए हिंदुस्तान भर का दौरा किया। आप जहाँ भी पहुँचे और अंग्रेजी मदरसा खोलने का जिक्र किया तो वहाँ के मुकामी शरई उलमा ने काली झंडियाँ दिखाई और नारा मारने लगे, वापस जाओ, वापस जाओ, सर सैयद ईसाई बनाना चाहता है। मुसलमानों के इस बर्ताव पर भी दुरंदेश हकीम नाखुश नहीं था, बल्कि यही कहता रहा कि हमारे उलमाए दीन और मुसलमानों को यही बीमारी है और उसी बीमारी का मैं डॉक्टर हूँ। मैं एक मेंटल हाउस, इलाज घर जरूर बनाऊंगा और पागल उलमा से मुसलमान महफूज रह सके और कम अज कम जमाना के मुताबिक मुसलमान भी चले। सर सैयद अहमद खान उस वक्त डिस्ट्रिक्ट जज थे। अलीगढ़ में एक नर्सिंग होम की बुनियाद डाली, जिसको मोहम्मदन और नेशनल कॉलेज के नाम से रजिस्ट्री कराया। जबकि मदरसा की तामीर शुरू हुई तो सर सैयद अहमद खान ने कौम से ताउन चाहा कि भाइयों, इस मदरसा में दिल खोलकर चंदा देकर कामयाब बनाइए। उस ताउन का मकसद सिर्फ ये था कि मुस्लिम कौम समझे कि हमारा मदरसा है और उसमें तालीम हासिल करे, वरना मुसलमानों से चंदा लेने की जरूरत न थी। जबकि वो खुद डिस्ट्रिक्ट जज थे, ऐसे कई मदरसे बनवा सकते थे या वह लिख देते तो अंग्रेजी हुकूमत ही उस मदरसा के चलाने का खर्चा पूरा करती, मगर वो मुसलमानों से ही ताउन तलब किए। उलमा 72 फिरकों की तरफ से ये एक जोड़ा पुराना जूता एक पार्सल बजरिया डाक सर सैयद अहमद खान के नाम भेजकर मजाक किया, मगर सर सैयद अहमद खान ने नहायत संजीदगी से उस पार्सल को लेकर कानपुर चमारों से कहा कि भाई दास बिरादरी, तुम लोग इस जूते को खरीद लो, ये हमारे उलमाए दीन का अतिया है। अगर सोना होता तो सुनार को दे देता, लोहा होता तो लोहार को दे देता और मिट्टी का बर्तन होता तो कुम्हार को दे देता और लकड़ी होती तो नज्जार को दे देता, मगर ये पुराना जूता भला कौन खरीदेगा। लेकिन आप हजरात जूतों के सौदागर हैं, लिहाजा आप ही उसको खरीदिए। सर सैयद अहमद खान के इन दर्द भरी बातों को सुनकर दास साहब एक हाइड मर्चेंट ने मुबल्लिग 1 लाख रुपये में उस उलमाई पार्सल जूते को खरीद लिया और कहा कि हुजूर, ऐसे जितने भी पार्सल मदरसा के निस्बत आवेंगे हम सब के खरीदार हैं। गर्जे कानपुर, चमार, फरखाबादी, भंगियों और लखनऊ और लाहौर के तवाइफों ने उस मदरसा में दिल खोल कर चंदा दिया। बहरहाल किसी न किसी तरह मदरसा बन गया। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी तालीम शुरू हो गई तो उलमाए दीन ने डबल फतवा सादिर किया। पहला फतवा तलबा के नाम, मुसलमानों खबरदार खबरदार अंग्रेजी न पढ़ना, ये शैतानी इल्म है, क्योंकि ये मुनकिर नकीर अरबी में सवाल करेंगे, मन रब्बकुम वो दीनुकुम, उस वक्त अरबी में ही जवाब देना चाहिए। काश उस वक्त मुंह से अंग्रेजी में जवाब निकल गया तो फरिश्ते गुस्सा होकर अल्लाह मियाँ से जाकर शिकायत करेंगे कि हुजूर, मुर्दे सब अंग्रेजी बोलते हैं, हम हिसाब किताब कैसे करें। तो अल्लाह मियाँ अंग्रेजी बोलने वाले मुर्दों को जहन्नम में डाल देंगे, जहाँ 70,000 साल तक रहना पड़ेगा। बस जहन्नम का नाम सुनकर शरीयत के खौफ से आंख मूंद चित करके लेट गए। मुसलमानों ने अंग्रेजी पढ़ने से इनकार कर दिया। उलमा का फतवा कामयाब रहा। दूसरा फतवा सर सैयद अहमद खान के नाम कि तुमने चमारों, भंगियों और तवाइफों के रुपयों और काफिरों के चंदा से मदरसा बनवाया है, जो सरासर अजाब जारिया बन गया है और अंग्रेजी पढ़कर सही मानों में कोई मुसलमान ही नहीं रह सकता है, सब काफिर और बेदीन हो जाएंगे। तो सर सैयद अहमद खान ने उलमा और उनकी शरीयत को चमकारा कि इतना गुस्सा न करो, जरा बात सुन लो। हमने जमींदारों के रुपयों से मदरसा के लिए जमीन खरीदा है। नंबर 2, ठेकेदारों के रुपयों से ईंट, चूना, सुर्खी खरीदा है। नंबर 3, हिंदुओं के रुपयों से चटाई, मेज, कुर्सी खरीदा है। नंबर 4, मुत्तकी और परहेजगारों के रुपयों से किताब, कलम, रोशनाई खरीदा है। नंबर 5, शेख और सैयद के रुपयों से उस्ताद और मुअल्लिम रखा है। नंबर 6, मुगल और पठान के रुपयों से मुहाफिज और दरबान रखा है। नंबर 7, तवायफ के रुपयों से पेशाब, पैखाना और बाथरूम बनवाया है। 8, भंगियों के रुपयों से सफाई के लिए मेहतर और हलाल खोर रखा है।
9 और चमारों के रुपयों से तलबा के जूतों की अलमारी और सफाई का एहतमाम किया है। फिर इस मदरसा की तालीम खिलाफ शरीयत कैसे हो सकती है? अगर मैं तवायफों और भंगियों से रुपया न लेता तो मुत्तकियों के रुपयों को पेशाब और पैखाना और उसकी सफाई पर कैसे खर्च करता? सर सैयद खान के इस जवाब को सुनकर मोहतरमा शरीयत साहबा का गुस्सा ठंडा हुआ और उलमा 72 फिरके लाजवाब व शर्मिंदा हो गए। उलमा 72 फिरके लाजवाब वो शर्मिंदा हो गए। जी हाँ नाज़रीन, और आगे के वाक़यात आप अगले एपिसोड में समाप्त फरमाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तसव्वुफ़ की रोशनी में लेकर मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाज़रीन से आपका नियाज़मंद भाई नियाज़ी टीवी का एक नियाज़मंदाना गुजारिश है और तमाम इंसानियत से इल्तिजा है कि नियाज़ी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को आप हजरात जरूर समाप्त करें और ख़ासकर बिलखुसूस उन भाइयों तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को जरूर पहुँचाएँ जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ गलतफहमियाँ डाली गई है। क्योंकि मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात, पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसलिए हम तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद और मनसा सिर्फ ये है कि मोहम्मदी रोशनी से ज़माना रोशन हो जाए, हक और बातिल को ज़माना जान ले और हमारे आका व मौला की तौहीन न की जाए, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी ना की जाए। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप हुसैनियत और मोहम्मदियत को पसंद करते हैं तो आप हमारे इस मोहम्मदी पैगाम को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे इस पेशकश को, हमारे इस नेक कोशिशों को और इस मोहम्मदी पैगाम को और आप अपने इस मोहम्मदी चैनल नियाज़ी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हाँ तो नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में मोहम्मदी रोशनी लेकर। तब तक के लिए आप तमाम अजीजों को अल्लाह हाफिज़, आदाब।